Hello students, I am Dr. Lakshmikant Pandey, Assistant Professor, Department of Biotechnology, St. Aloysius College, Jabalpur. So students, I am going to make this video for my PG students. As we all know that due to coronavirus outbreak in the country, there is no online on-campus classes are going on. So because of that, I am making this video for my MSc Biotechnology students. So friends, I will try to keep my lecture in both the languages, Hindi as well as English, to cater my both the students, means Hindi medium students as well as the English medium students. So friends, dear students, today I will explain you the topic in vitro translation. Now start the topic. So the topic is in vitro translation. Before I start this topic, you should know the basic of translation. Now what is translation? Translation is the process to make the protein inside the cells. So the synthesis of proteins in the cell takes place by two steps. The first is transcription. Let's suppose we have any gene and we want to make its protein. So the first step is the transcription. In transcription, what happens? The gene is converted into the DNA is converted into the mRNA. That is called the messenger RNA. Then after that, the messenger RNA is converted into the protein, and that process is known as the translation. So basically for translation, what we required? We required the messenger RNA. Fine. So now the topic is in vitro translation. So what is the basic difference between the in vitro translation to the normal translation which normally occurs in the cell? The translation which occurs in the cell is known as in vivo translation, and this is the in vitro translation. So in vitro translation means the translation process which normally occurs in the cell is going to takes place outside the cell. That means outside the cell means we are doing the translation process in a microcentrifuge tube, that is 0.2 or the 0.5 ml PCR tubes. Means we are doing the in vivo translation process inside a small microcentrifuge tube. So this is known as the in vitro translation. So as the definition suggests, the in vitro synthesis of the protein in cell-free extract is known as the in vitro transcription. In vitro translation. So for translation, we require different types of macromolecules like 70S or the 80S ribosomes, tRNA, amino acid synthetase. These all components are very essential for happening the translation inside cells. So for doing the in vitro translation, we are using cell-free system. So for cell-free system, normally we use rabbit reticulocytes or the E. coli cells. Other than these rabbit reticulocytes and the E. coli, other people can also use, like human cells can be also used, and wheat germ cell extract can also be used, insect cell extract can also be used. So for doing the in vitro translation, first of all we require the cell-free extract. Now what is cell-free extract? How we can make the cell-free extract? Say for example rabbit reticulocytes. So for that you require the reticulocyte cells. रेटिकुलोसाइट सेल्स, व्हाट आर दीज रेटिकुलोसाइट सेल्स? ये सेल्स क्या होते हैं? ये सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं रैबिट के अंदर में जो मेनली क्या करते हैं? दे मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रैबिट, फॉर द रैबिट. तो ये क्या करते हैं? ये हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करते हैं किसके अंदर में? रैबिट के अंदर में. ये काम होता है रेटिकुलोसाइट सेल्स का. तो हमने क्या किया है? रैबिट के रेटिकुलोसाइट्स को सेल्स को लिया हुआ है, इसको हमने लाइज कर दिया है. इसको हमने what we had done, we had taken out the reticulocyte cells from the rabbit and lysed them. लाइज से क्या हो जाएगा? सेल्स के अंदर का जो भी कंपोनेंट रहेंगे वो सारे के सारे आपके बाहर आ जाएंगे. फाइन. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप इज that reticulocytes lysate should be treated with a special type of nucleases. This is called the micrococcal nucleases कहते हैं इसको हम लोग. उससे हमको क्या करना पड़ता है? इसके लाइसेट को हमको ट्रीट करना पड़ता है. Now the question arises here, why we are doing this? हम इसको न्यूक्लियस के साथ ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? Because अगर हम लाइज जब करेंगे रेबिट रेटिकुलोसाइट्स को सेल्स को, तो क्या होगा? उसमें कुछ एंडोजिनस
डीएनए प्रेजेंट रहेंगे, एंडोजेनस आरएनए प्रेजेंट रहेंगे। वो क्या करेंगे, जब इस मान लो हम सिस्टम को यूज करते हैं एक्सप्रेशन करने के लिए, किसी फॉरेन पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, अगर इसका एंडोजेनस जीन प्रेजेंट है तो वो भी साथ में क्या हो जाएगा, आपका एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा उसको। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, लाइसेट प्रोड्यूस हम बनाते हैं। तो लाइसेट लाइज करने के बाद फिर क्या करते हैं इसको हम लोग, वी आर ट्रीटिंग इट विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूक्लियसेस। इससे क्या हो जाएगा, जो भी इसका एंडोजेनस डीएनए रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिग्रेड हो जाएगा। वंस all the endogenous DNA gets degraded, then we inactivate that particular nucleases by treating with the EGT। EGT आपका कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, उसका काम क्या होता है, ये एक प्रकार का चिलेटिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, आपका न्यूक्लियस की एक्टिविटी को क्या करेगा, ये डिक्रीज खत्म कर देगा इसको। इससे क्या हो जाएगा, जब नेक्स्ट टाइम जब इसको लाइसिट को यूज करेंगे फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो फॉरेन जीन को डिग्रेड नहीं करेगा न्यूक्लियस, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द EGTA दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस गेट द इनएक्टिवेटेड। ओके, तो ये हो गया आपका क्रूड एक्सट्रैक्ट हमको मिल गया हमको। सो क्रूड एक्सट्रैक्ट में सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं जो नॉर्मल सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन साथ में हमको कुछ इसको सप्लीमेंट भी करना पड़ता है कुछ चीजों के साथ में। जैसे एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, कुछ अमाइनो एसिड्स हमको इसमें अलग से डालने पड़ते हैं इसमें, साथ में एनर्जी सोर्सेस एंड एनर्जी रीजेनेटिक सोर्सेस को हमको इसमें डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है मैंने यहाँ पे कि फॉर यूकैरियोटिक सिस्टम वी यूज द क्रिटेनिन फॉस्फोकाइनेज as a energy regenerating system, and for the E. coli we use the pyruvate kinases और the PEP phosphoenol pyruvate यूज करते हैं। साथ ही साथ में हमको कुछ को-फैक्टर्स को भी इस पर्टिकुलर क्रूड एक्सट्रैक्ट में डालना होता है। इसको डालने के बाद क्या हो जाएगा, आपका ये एक्सट्रैक्ट आपका रेडी हो जाएगा फॉर डूइंग द इन विट्रो ट्रांसलेशन। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्टिंग मटेरियल, कि हम डीएनए ले रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल जिसका हमको ट्रांसलेशन करना है, या और वी आर यूजिंग द आरएनए, उसके बेसिस पे इसको दो क्लास में क्लासिफाई किया गया इन विट्रो ट्रांसलेशन को। पहला आपका होता है स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सेकंड इज द कपल्ड एंड द लिंक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम अलग अलग हैं आपके। ये पहला हो गया स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन, दूसरा हो गया कपल्ड सिस्टम और द लिंक सिस्टम। तीन क्लास में मेनली इसको क्लासिफाई किया गया है इसको, ठीक है। नाउ हम देखते हैं ये तीनों सिस्टम कैसे काम करते हैं। पहला आपका आता है स्टैंडर्ड सिस्टम। स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता है, आपका जो इनपुट मटेरियल क्या रहेगा, आपका प्यूरिफाइड आरएनए रहेगा इसमें। दैट मीन्स हमको क्या लेना, हमको यहाँ पे अपना जो आरएनए है, या हम कह सकते हैं इसको एमआरएनए कह सकते हैं, उसको यूज करेंगे, जिसको हमको क्या करना है, हमको उसका प्रोटीन बनाना है। तो आपका इनपुट मटेरियल आपका हो जाएगा यहाँ पे। वो उसको ले लिया आपने, उसको साथ में किस में ऐड कर दिया, इसको आपने जो लाइसेट बनाया था हमने रैपिड रेटिकुलोसाइट्स का, उसमें आपने इसको ऐड कर दिया इसको। और इसको हम इंक्यूबेट करेंगे एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर के लिए। सो अगर हम कंपेयर करें इन विवो सिस्टम ऑफ ट्रांसलेशन एंड द इन विट्रो सिस्टम ऑफ ट्रांसलेशन, ये सिस्टम बहुत रैपिड होता है, बहुत फास्ट आपका होता है। 1 घंटे में क्या करेगा, आपका जो आपने जीन आरएनए लिया होगा उसका क्या रहेगा, आपका उसका प्रोटीन बना के दे देगा आपको। दैट मीन्स क्या हो गया, आपका ये स्टेप क्या हो गया, बहुत फास्ट हो गया। हम कंपैरिजन करें, लेट्स सपोज नॉर्मली क्या होता है, जो हम किसी जीन को एक्सप्रेस कराना होता है उसको हम क्लोनिंग मेथड से उसको एक्सप्रेस करा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, आपको 7 to 10 डेज लग जाएगा उसमें। अगर पर्टिकुलर जीन को आपको एक्सप्रेस कराना है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, 7 to 10 डेज ले लेता है। लेकिन अगर हम इन विट्रो ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ये मेथड बहुत फास्ट होता है। ये 30 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे में आपका प्रोसेस आपको रिजल्ट दे देगा। ये प्रोटीन बन गया इसका। अब प्रोटीन बना है कि नहीं बना चेक करने के लिए आपको इसको एसजीएस पेज पर रन करके देखना होगा इसको। इसमें आपको दिखाई देगा आपका प्रोटीन जो पर्टिकुलर जो आपने जीन लिया था उसका प्रोटीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपका एक स्टैंडर्ड मेथड हो गया। इसमें आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो गया, आपका आरएनए हो गया। नेक्स्ट आपका आता है लिंक्ड और द कपल्ड रिएक्शन। लिंक्ड रिएक्शन में क्या होता है, हम 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब लेते हैं, सॉरी 2 डिफरेंट माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा, आपका डीएनए टेम्पलेट रहेगा आपका। आपको जीन लेना होता है इसमें। तो फर्स्ट ट्यूब में क्या होगा, आपका जो आपने डीएनए लिया हुआ है इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन, उसको हम इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको हम लोग। इन विट्रो जैसे मैंने शुरू में बताया, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आपका जीन से क्या बनता है, आपका आरएनए एमआरएनए बनता है इसको। सो इन फर्स्ट ट्यूब व्हाट इज हैपनिंग, the DNA gets converted into the mRNA with the process of in vitro transcription। इसके लिए भी टाइम कितना लग रहा है, आपका 1 घंटा लग रहा है, और टेम्परेचर कितना रहेगा इसके लिए, आपका 30 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा इसके लिए हमको। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो आपका आउटपुट मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम लोग यूज कर लेंगे एज अ टेम्पलेट फॉर द सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में क्या रहेगा, आपका आपने ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन का आउटपुट ले लिया है, नाउ इट इज कॉल्ड द एमआरएनए बोलेंगे उसको हम लोग।
उसको आपने कहाँ डाल दिया, आपने जो हमने एक्सट्रैक्ट बनाया था, जो रैपिड रेटिकुलोसाइट का एक्सट्रैक्ट बनाया उसको हम लोग ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा इसमें। इसके लिए टाइम देना 1 घंटा देना है और टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम लोग लिंक्ड इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सिस्टम कहते हैं इसको हम लोग। बस हो क्या रहा है यहाँ पे, आपका एक ट्यूब में आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, सेकेंड ट्यूब में आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन आपका हो रहा है। थर्ड आपका होता है कपल रिएक्शन। कपल रिएक्शन में क्या होता है, हम एक ही ट्यूब में ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और उसी ट्यूब में क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे आपका जो एंजाइम काम करता है इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन के लिए होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो हमको यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ऐड करना पड़ेगा, वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और सेकेंड ट्यूब में क्या रहेगा आपका यहाँ पे, रैबिड रेटिकुलोसाइट सेल एक्सट्रैक्ट हमको लेना, हमको यहाँ पे हो फाइन। बट कपल रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका एक ही ट्यूब में आपको आरएनए पॉलीमरेज भी डालना है और साथ में उसमें आपको आपका दैट इन विट्रो ट्रांसलेशन का जो हमारा एक्सट्रैक्ट लगता है उसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो उसको ये क्या होता है आपका, वो कपल रिएक्शन कहलाता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया है लिंक्ड एंड द कपल रिएक्शन में, इन लिंक द प्रोसेस इज सीक्वेंशियल, फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड इज द ट्रांसलेशन, बट फॉर द कपल रिएक्शन द प्रोसेस इज साइमल्टेनियसली। एक ही ट्यूब में क्या हो रहा है, आपका ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, साथ में क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट लिया आपने, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आपका आरएनए बन गया है, इसका फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन होगा आपका, यहाँ पे इसका प्रोटीन आपका बन जाएगा ये। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन लिंक्ड इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में और कपल इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में। तो 3 टाइप के आपके इन विट्रो ट्रांसलेशन मेथड्स हो गए हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया है, सेकेंड इज द लिंक एंड थर्ड इज द कपल रिएक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं। रैपिड रेटिकुलोसाइट सिस्टम जो बताया मैंने आपको, इकोलाई का सिस्टम आपका होता है, वीट जम कैन ऑल्सो बी यूज, इंसेक्ट सिस्टम को भी यूज किया जा सकता है, ह्यूमन सेल्स को भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर हम इकोलाई की बात करते हैं, बहुत फास्ट होता है, बहुत हाई यील्ड हमको प्रोटीन मिलता है हमको यहाँ पे, लेकिन साथ में क्या होते हैं कुछ ऐसे जो यूकैरियोटिक जो जीन्स होते हैं जिनका आपका पोस्ट और कोड ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होना होता है प्रोटीन्स में, वो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है इसमें। बट व्हेन वी आर यूजिंग द यूकैरियोटिक सिस्टम फॉर द एक्सप्रेशन, we can definitely do the post and the code translation modification in the protein as well as, but yield थोड़ा कम होता है यहाँ पे। अगर कंपैरिजन करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन क्या होता है। अगर हम एप्लीकेशन देखें इसका, तो पहला क्या होता है, आप यू कैन एक्सप्रेस इन अ क्विक टाइम एनी फॉरेन जीन। फर्स्ट एप्लीकेशन इसका ही होता है, कोई भी फॉरेन जीन, लेट्स सपोज हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, अगर उसकी किसी जीन को हमको एक्सप्रेस करना है हमको यहाँ पे, तो हम इन विट्रो ट्रांसलेशन को यूज कर सकते हैं, जो बहुत कम टाइम में क्या कर सकता है, आपका उसका एक्सप्रेशन दे सकता है। कोरोना वायरस क्या हो गया, आपका वायरस का प्रोटीन हो गया, बट उसको हम चाहें तो हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और द यूकैरियोटिक सिस्टम में उसको हम लोग चाहे तो वहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको हम लोग बाय यूजिंग द इन विट्रो ट्रांसलेशन। सेकंड क्या होता है, आप चाहो तो डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप्स के अमाइनो एसिड्स को हम चाहें तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इन विट्रो ट्रांसलेशन की मदद से। साथ ही साथ क्या हो सकता है, डिफरेंट म्यूटेशन को हम चाहें तो यहाँ पे हम लोग लोकलाइज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर में। तो ये क्या हो गया, कुछ इसके एप्लीकेशंस हो गया इसके आपको, ठीक है। So okay students, this is all about the in vitro translation. If you have any queries regarding this topic in vitro translation, you are free to ask me through the WhatsApp or the any means. Okay, I hope you get the topic very well. If you have any queries, you can ask me later on. So friends, in my next video I will talk about the site directed mutagenesis. Okay, thank you very much.